Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम मीटिंग की शुरुआत करेंगे. प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे. Heavenly Father, we thank you and we praise you and we glorify your holy name, O God. Thank you, Father, for who you are, O Lord Father. You are our Abba Father. You are the Creator God, O Lord Father. You have created us, O Lord Father, in your own image, O Lord Father. We thank you, we bless you, and we glorify holy name, O Lord Father. You are the Alpha, you are the Omega, O Lord Father, the beginning and the end, O Lord Father, the bright and the morning star, O Lord Father. We praise you and we give you all the glory, Lord Father. We commit this time into your hand, O Lord Father. Guide us and lead us, O Lord Father, by your Holy Spirit, O Lord Father. Help us, O Lord Father, to glorify your name, to magnify your name through your words, O Lord Father, to magnify your name, O Lord Father. We thank you and bless you, O Lord Father. We commit this time into your hand, O Lord Father. We commit all the children and all the people who are gathered here into your hand, O Lord Father. Lead us by your Holy Spirit, O God. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Okay, can I see all the children's camera on, please? Ishita, Sneha, Enoch. Very good. Stuti. Very good. Good children. Okay. We attend the classes, no? School classes, do we attend? School, do we attend? We keep our cameras on, isn't it? We keep our cameras on. Okay, Sneha says no. But small children have to keep their cameras on now, okay? So I request all of you all to keep your camera on, okay, throughout the children ministry. Okay. Today we are going to see praising God. What we are going to see? Praising God. And before that, Bethany will lead you all in some of the praise songs. Okay, so I'll invite Bethany to come and sing for us the actions. Okay, and everybody are going to do actions with Bethany. Okay. Hello. Say hi, everyone. First of all, say hi. Okay, I can see two new faces. Can you all introduce yourselves? दो नए चेहरे हैं. चेहरे हमको दिख रहे सब लोग को. Okay, नाम क्या है? Sunita and Lakshmi's niece, Aditi and Kavya. Okay, can you tell me your name? Aditi. Aditi, very good. Kavya. Kavya, very Hi, good. Aditi. Hi, Kavya. My name is Bethany. Hi. Hi. Okay, so we are going to sing some songs. Some means two songs. And I think everyone knows these songs. So I request all of you all please sing along and do the actions also. If you all don't do the actions, then I will spotlight your video. And then everyone is going to see you all only. So I suggest all of you all please do the actions. Okay? Okay. Everyone knows the song Praise Him in the Morning? Praise Him, praise Him. Everyone knows the song? Yes, thumbs up. Who doesn't know? Thumbs down. I will teach you all the song then. Who knows? Thumbs up. Come on. Also, big people. Sare bade log. Exercise for you all. Come on. You all also put on the cameras. Sab log exercise karenge. Actions karenge. Come on all. I request all the big people. Sare bade log jo bhi hai, wo aap log bhi camera on kar sakte ho aur hamare sath actions kar sakte hain. Okay, see, I have a big person over here. I'm seeing Jose is volunteering. So come on. Everyone knows the song, right? So we will sing it loudly even though we are on mute. हम सब लोग जोर से गाएंगे ये song. हम लोग mute पे है, पर सब लोग जोर से गाएंगे. Okay? Done?
Okay. Praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down, praise him, praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him. Praise him when the sun goes down. Love him, love him. Love him in the morning, love him in the noontime. Love him, love him. Love him when the sun goes down. Love him, love him. Love him in the morning, love him in the noontime. Love him, love him. Love him when the sun goes down. Serve him, serve him. Serve him in the morning, serve him in the noontime. Serve him, serve him. Serve him when the sun goes down. Serve him, serve him. Serve him in the morning, serve him in the noontime. Serve him, serve him. Serve him when the sun goes down. Praise him, praise him, praise him. Praise him in the morning, praise him in the noontime. Praise him, praise him. Praise him when the sun goes down. Praise him when the sun goes down. Praise him when the sun goes down. Good job, everyone. Good job. Okay. So now we have sang one song. Okay. So now one song you all have to tell me. Whichever song you all want to sing. Any one song. Come on. Smile a while. Smile a while. Okay. Okay. Some other song. We took last time Smile a while. Any other suggestions or we'll take Smile a while? Come. Pharaoh. Pharaoh, Pharaoh. Okay, we can take Pharaoh, Pharaoh. Any other song? Anyone else? No suggestions? Okay, first we'll sing Pharaoh, Pharaoh. Okay. And then we'll sing Smile a while. Okay. Done? Okay, everyone will sing. I need to see thumbs ups. Good. Pharaoh, Pharaoh. Oh no, let my people go. Oof. Yeah, yeah, yeah. Pharaoh, Pharaoh. Oh no, let my people go. Oof. Yeah, yeah, yeah. The burning bush told me just the other day that I should come over and I should say, got to get my people from the Pharaoh's hand and lead them all over to the promised land. Sing Pharaoh, Pharaoh. Oh no, let my people go. Oof. Yeah, yeah, yeah. Pharaoh, Pharaoh. Oh no, let my people go. Oof. Yeah, yeah, yeah. The burning bush told me just the other day that I should come over and I should say, got to get my people from the Pharaoh's hand and lead them all over to the promised land. Sing Pharaoh, Pharaoh. Oh no, let my people go. Oof. Yeah, yeah, yeah. Pharaoh, Pharaoh. Oh no, let my people go. Oof. Yeah, yeah, yeah. Good job, everyone. Hepzibah, you don't like this song? Hepzibah doesn't like this song. She doesn't like Pharaoh, Pharaoh. Okay, so we'll sing Smile a while, okay? Everyone has to sing loudly. 1 second, okay?
Okay. Loudly, everyone, okay? In your own homes, obviously. I cannot hear you all. But I assume you all are singing loudly. Parents, are they singing loudly? Yes? Okay. Loudly, okay? Smile a while and give your face a rest. Lift your hands to the one you love the best. Turn around to someone new. Shake your hands and smile. Smile a while and give your face a rest. Lift your hands to the one you love the best. Turn around to someone new. Shake your hands and smile. Smile a while and give the face a rest. Lift your hands to the one you love the best. Turn around. Smile if there's someone sitting next to you. There is? Okay. Shake your hands and smile. Smile a while and give your face a rest. Lift your hands to the one you love the best. Turn around. Smile if you all had lunch. Good. Shake your hands and smile. Smile a while and give your face a rest. Lift your hands to the one you love the best. Turn around. If you all love your mummies, smile, smile broad. How much ever you all love that broad, the smile. Shake your hands and smile. Smile a while and give your face a rest. Lift your hands to the one you love the best. Turn around to someone new. Shake your hands and smile. Shake your hands and smile. Shake your hands and smile. Good job. Come on, clap loudly. Okay. One last song, okay? Come on. Everyone knows this song. Yes? Everyone knows? Everyone knows Ami Abhari Re? Yes? Come on, loudly. Ami Abhari Re, Abhari Manto Yeshula. Ami Abhari Re, Abhari Manto Yeshula. Ami Abhari Manto Yeshula. Ami Abhari Manto Yeshula. Ami Abhari Re, Abhari Manto Yeshula. Everyone knows the song? Yes, I didn't see them. Philemon doesn't know the song. No? Anyone? Hepzibah, you know the song? Yes? Yes. Come on, Philemon, you can learn it with us, okay? Okay? Everyone will do, whoever know, everyone else who knows the song will do the actions, right? Thumbs up. I need to see the thumbs up. Yes, okay. Ami Abhari Re, Abhari Manto Yeshula. Ami Abhari Re, Abhari Manto Yeshula. Ami Abhari Manto Yeshula. Ami Abhari Manto Yeshula. Ami Abhari Re, Abhari Manto Yeshula. Ami Abhari Re, Abhari Manto Yeshula. Khayala piyala Yeshu ne dile, khayala piyala Yeshu ne dile, rahala zaga Yeshu ne dile, rahala zaga Yeshu ne dile,
खायला पियाला येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिले. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. गुन्ह्याची माफी येशूने दिली, गुन्ह्याची माफी येशूने दिली. नवा जीवन येशूने दिले, नवा जीवन येशूने दिले. गुन्ह्याची माफी येशूने दिली, नवा जीवन येशूने दिले. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आभारी 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 आभारी. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. Come on, give a loud round of applause for Jesus. And now for yourselves also. Good job, everyone. Okay. Okay, how many of you all enjoyed the praise and worship? Very good. Very good. Very good, children. So today, as I said, we are going to say what is praising. Can you all tell me what does praise means? What does praise means? Praising means what? Anybody knows? Okay. Okay. If I say it is like, praising means like talking or saying something about some person or some people. Is it? What does praising means? Talking something about or saying something about some person, good things about person or some people. Okay. Sometimes we praise people or sometimes we praise any person by saying, oh, how intelligent that boy is, or how intelligent that girl is. Isn't it? We say that, no? Sometimes we say how handsome, how beautiful that girl or boy is. How that person is loving, caring, kind, helpful. This is called praising the person, isn't it? This way we praise the person. No, if anybody does any good thing, we praise, oh, that boy or oh, that girl is very helpful. She or he helps mother in home, cooking, cleaning, or in the school, teachers say, oh, very good, that boy or girl is very good. This is called what? Praising the person. Same way, we are going to see today what is praising God. Okay. Do we have a Bible with us? Yes? Notebook, paper, pen? Yeah? Okay, very good. Good children. Okay, when I'm saying some verse, please note it down. Okay, we are going to see Psalm 150. Psalm 150. Bhajan Sanhita 150. Okay, we are going to see. Here it says, praise the Lord. Here it says, praise the
Lord. For many things it is said, praise the Lord. Can you all count and tell me how many times it is written in these 6 verses? That it is very small psalm, but praise the Lord is written how many times? Can you please count and tell me how many times it is written over here? Who will tell first? Let me see. 13. Count. Who said first? 13 times. 13 times. Anybody else? Who's there? Next one. कितने बार प्रेज द लॉर्ड करके लिखा है? प्रभु की स्तुति प्रभु की प्रशंसा हो कितने बार लिखा है? साम भजन संहिता 150 में कितने बार लिखा है प्रभु की प्रशंसा हो? 12 बार. 12. 12. Okay. Mahima is saying 12 times. Ishita? Aditi said 12 times. Aditi 12 बार बोला? 13. 13. Okay. Enoch, did you count? Okay, it is 13 times. How many times it is written? Praise the Lord is written 13 times. Okay, read one more time and then count and see. Okay, see, I have made some notes in my Bible. Okay, here, can you all see it? Yeah, see. Okay, one preacher had come and he was explaining this psalm. This psalm explains about or gives the answer to the 4 questions. This psalm gives answer to our 4 questions because our God is worthy of all our praises. Okay, our God is worthy of all our praises. हमारा परमेश्वर योग्य है सभी आराधना और स्तुति के. ओके, और Psalm 150 में 4 क्वेश्चन का आंसर लिखा है, 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है. पहला है where do we praise God? पहला क्वेश्चन, what is the first question? Where do we praise God? We find it in Psalm 150 verse 1. Okay, second question is why do we praise God? So पहला क्वेश्चन है हम कहाँ परमेश्वर की स्तुति करते हैं और प्रशंसा करते हैं. दूसरा क्वेश्चन, हम क्यों परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू वी प्रेज गॉड? हम लोग कैसे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो लिखा है भजन संहिता 150 3 से 5 में. और चौथा है who is to praise God or who are to praise God? कौन प्रभु की प्रशंसा करेगा, वो लिखा है Psalm 150 verse 6. So मैंने इधर लिखा है, पहले वर्स के अगेंस्ट लिखा है where, कहाँ. सेकेंड वर्स में मैंने लिखा है why. तीसरे वर्स में मैंने लिखा है how. और छठे वर्स में मैंने लिखा है who. Okay, whenever we'll read this psalm, we'll come to know where we have to praise God, why we have to praise God, how we have to praise God, and who are to praise God, or who is the one who is the one to praise God. These are the 4 questions answered in this psalm. So today we are going to see first question or first answer. Where do we praise God? Where do we praise God? 2-4 महीने पहले हम लोग एक्सोडस सीखते थे. सभी दिन सीखा ना? We learned Exodus, okay? And Uncle Joe's explained very well about Exodus. In Old Testament, the Jewish people were commanded, God had given them the command to go to Jerusalem and to praise God. Okay, and they used to go and praise him and worship him in his holy temple
or sanctuary. So verse 1 says, praise God in his sanctuary, praise him in his mighty firmament. Okay, so either what do we see here? Old Testament में कैसे sorry for my Hindi. I think I'll go in English only. In Old Testament, Jewish people were commanded to praise God by going up to Jerusalem. Okay, they used to go 3 times a year to Jerusalem and to praise God and to worship over there in his holy temple, or that is a sanctuary was there. Okay, the people used to go and praise God over there or worship God over there. And in Psalm 100 and verse 4, please note down, Psalm 100 and verse 4, it says, enter into his gates with thanksgiving. Did you all get it? Did you all get? Psalm 100 verse 4. Who will read it for me? Sabita, are you there? Okay. Sabita, read. Yeah. Psalm 100 verse 4. enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful what to him and bless his name. Okay. Okay. Bethany will read in Hindi. धन्यवाद के गीत संग लिए यहोवा के नगर में आओ, गुणगान के गीत संग लिए यहोवा के मंदिर में आओ. Okay. Today, in Old Testament, people used to go to Jerusalem and worship over there. But today, the Lord's presence dwells inside every believer. When we accept Jesus Christ, Jesus comes in our hearts and he made his dwelling in us. We get that in the 1 Corinthians 3 verse 16. Where do we get this verse? 1 Corinthians 3 verse 16. Do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? Today we are the temple of God. Who we are today? Today we are the temple of God. And in the 1 Corinthians 6 verse 19 also it says, your body is the temple of the Holy Spirit. And so we are to praise God. Previously, people used to go to Jerusalem and praise God and worship him. Today, he made his dwelling in us. Okay, so we can praise God from anywhere and everywhere. Second, B part of the first verse, it says, praise him in his mighty firmament. What is the firmament? East and west and south and north. Can we measure this? Can we see every part of the world? No, it is from east to west, south to north, everywhere. That means all heavens declare the glory of the Lord. All the sky, everything that is in the sky, everywhere. There is no place where his glory is not heard or where his glory is not shown. Okay, so we are to praise God everywhere and from anywhere. So where do we praise God? We praise God from everywhere. Wherever we stand, wherever 2 or 3 people gather, there the presence of God is there. Today he made his presence, he is there present in us. He made his dwelling in us. So he is present in us also. Okay, he is with us. He's always there with us. He goes with us. Okay, he's always there by our side. So his presence is everywhere. So where do we praise him? Because he is present everywhere, we praise him everywhere. Anytime, anywhere. When we are sleeping, when we are getting up, when the sun comes up, when the sun goes down. We sang that song, no? Praise him in the morning, praise him in the noontime,
praise him when the sun goes down. So we praise God every time and from anywhere. His word also says, where 2 or 3 gather in his name, there his presence is there. Okay, so we gathered here today, so his presence is here, so we can praise God from anywhere. Okay, so did you all understand this? First answer for the first question, where do we praise God? That is the first verse. Rest of the verses we'll do afterwards, not today. Okay, did you all understand? Yes, no? Understood? Aditya and Kavya, did you all understand? समझ में आया? Very good. Ishita, Mahima, समझ में आया? Okay. Okay. We'll go for the memory verse. Who will say? I think Mahima will say first today. Memory verse. भजन संगीता Bhajan Sangeeta 43 43 उसका त्रिवचन त्रिवचन अपने प्रकाश अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेद सच्चाई को वेद और मेरी अगुवाई कर मेरी अगुवाई कर वह ही मुझे वही मुझे मुझको मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर ये पर्वत के पर्वत कर तेरे निवास स्थान में पहुंचाएंगे 43 का 3 43 का 3 Amen. Very good, Mahima. Okay, Ishita. Ishita. Say the memory verse. वो म्यूट में था. Oh, sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arms have given him the victory. The Lord has made known his salvation and in his righteousness, and he has revealed in the sign of the nation. Psalm 98, 1 verse 2. Very good, Ishita. Did you read the verse? No. Are you memorized? Yes. Okay, I expect all the children to memorize the verses. Okay. Reading, okay, we have to read, but memory verses is to memorize. Okay, very good, Ishita. Next, Philemon. Okay. He who has clean hands and a pure heart, who has not left his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Psalm 24 verse 4. Very good, Philemon. Psalm 17 verse 2 to 5. Let my vindication come from your presence. Let your eyes look at the things that are upright. You have tested my heart. You have visited me in the night. You have tried me and have found nothing. I have purposed that my mouth shall not transgress concerning the works of men by the words of your mouth. I have kept away from the paths of the destroyer. Uphold my steps in your path, that my footsteps may not slip. Very good, Sabita. Aditi, आपको memory verse बोलना है? बोलिए. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things that He has created us for long ago. Ephesians 2:10. Philippians? Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. Okay, very good. Kavya? Yes.
Bible words. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. 4:10. 4:10. Jane 4:10. James 4 verse 10. Very good, Kavya. Enoch. Jeremiah 29 verse 11, for I have plans for you to prosper, not to harm you, which will give you, which you will have future and give you hope. Very good. It is Jeremiah Jeremiah 29 verse 11. 29 verse 1. Very good. Hepzibah verse 11. Like the word In the Lord, in the Lord, and He will give you He will give you desire of your heart. desire of heart. Psalm 37, Psalm 37, 4. Very good, Hepzibah. Very good. Anybody else? Sneha. Matthew 6 verse 5 and 6 and when you pray, do not be like the hypocrites for they love to pray standing in the synagogues on the street to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Very good, Sneha. Anybody else is there? Yes. Okay. Who's there? Stuti. Okay. I can't see you all. That's why I missed you all. This way. Yes, Stuti. Say the verse. Hebrews 11 verse 6, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Very good, Stuti. Yash? I want to see Yash. Yash, I want to see you. Only show your face. I didn't see you for quite a long time now. Okay, say the verse. कैमरा बंद कर पहले. Okay, camera band. Yet we know that person is not justified by work of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by work of the law, because by the work of the law no one will be justified. Galatians 2 verse 16. Ephesians what? कौन सा verse है यश? Galatians 2 verse 16. Galatians 2 verse 16. Very good. Okay. Hema, can you please pray for the children? Hemlata? Yes, sister. Yes. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद देती प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर इन छोटे बच्चों के साथ में पिता आप थे, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो बच्चे पिता परमेश्वर आपके जो भी सुने हैं स्टोरी या उससे सीखे हैं प्रभु ने, वैसे ही उन्हें आशीष दीजिए। और जो बच्चे पिता परमेश्वर आपके वचन को याद करके पिता परमेश्वर वो बताते हैं प्रभु ने और आशीष दीजिए प्रभु, कि वो आपके वचन में और आप में प्रभु आगे बढ़े। पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आप बच्चों को आशीष दीजिए, सभी बच्चों को पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए प्रभु। आपके ही पिता मार्ग पे उन्हें चलाइए पिता परमेश्वर, उनके शारीरिक और पिता उनका जो भी है प्रभु कमजोरी रहेगा कुछ भी रहेगा उस सभी को आप दूर कीजिए
और आगे भी पिता परमेश्वर ने तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाइए, उनके जीवन को और आगे पिता परमेश्वर आप लेकर जाइए, मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर आप ही उनके लिए मार्ग, सत्य और जीवन बन के रहिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन बच्चों को अधिकांश से पिता परमेश्वर आप आशीष देते जाइए, उनके जाते समय आते समय, मार्ग में, घर में, हर जगह पिता परमेश्वर आप उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी आँख की पुतली जैसा आप संभालिए, उनकी कोई भी बीमारी हो इस समय में पिता परमेश्वर कुछ भी उन्हें ना छूने पाए, आप अपने लहू से उन्हें छिपा लीजिए पिता परमेश्वर, उनके लिए शरणागत बन के रहिए, उनके लिए गढ़ बन के रहिए प्रभु। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं। ये संडे पिता परमेश्वर, ये संडे क्लास के जैसा वो ले रहे हैं प्रभु, उन सभी बच्चों को जो आशीष दीजिए, और जो सिस्टर उनको सिखा रही है उन्हें भी आशीष दीजिए प्रभु। उन्हें भी पिता परमेश्वर बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें और नॉलेज देते हुए पिता परमेश्वर आपके नाम की वर्शिप करने के लिए, आपको और ऊंचा करने के लिए पिता परमेश्वर उनके मन में आप उत्पन्न कीजिए। ऐसा प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। सभी बच्चों को आपने याद किया, आशीष दिया, उनके दिलों में पिता आपने वचन बीज बोए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना आज के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ पिता, आमीन। Amen. Thank you mama for leading us in children ministry. आइए हम प्रभु की आराधना और उनकी स्तुति करें। Over to लता आंटी। आइए हम सब आराधना में जाते हैं। परमेश्वर ने हम सबको चुना है और बुलाया है, नियुक्त भी किया है, और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम हमारे जीवन में, परमेश्वर ने हमें इसके लिए भेजा है कि उसका कुछ मकसद को हम पूरा करें। तो वो मकसद जो है बहुत आसानी से तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमें परमेश्वर का साथ होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अनुग्रह दे कि हमें उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। आइए हम आराधना करेंगे। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जिसने मुझे चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं।
मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। माँ पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु आप हमें आगे लेके जाने वाले परमेश्वर हो प्रभु। पिछला सब भूलकर जैसे हमने गाया, मैं आगे दौड़ा चलूं प्रभु, जिसने मुझे है चुना प्रभु उसकी ओर मैं बढ़ूं। हालेलुया, आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें, हाथों को उठाकर हम आराधना करें। आराधना 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 यीशु के चरणों में आराधना करें। घुटनों पे आकर हम आराधना करें, उसके आंगनों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। आराधना 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 उसके
गणों में आराधना करें, उसके आंगनों में आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें। आराधना 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 यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम योग्य नहीं थे कि हम आपकी आराधना कर सके पिता परमेश्वर, पर आपने अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हमें प्रभु धोकर शुद्ध किया है और प्रभु अपने समीप खड़ा किया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे राजा है और हमारे पिता हो पिता परमेश्वर, जिससे हम पुकार सकते हैं हे आबा हे पिता कहकर प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय प्रभु, वचन सब प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हो प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू आराधना में लीड करने के लिए। किसी के पास कोई प्रार्थना का विषय? प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रार्थना का रिक्वेस्ट ये है कि मेरी मम्मी और निकले हैं वहां से, और सुबह थोड़ा परेशानी हो गया था, दोनों मतलब स्टेशन पर ही इधर उधर हो गई थी। और आप प्रार्थना करें कि अभी तो ना दोनों मिल गई, हम लोग ने प्रार्थना किया और फिर से आ रही है, सुरक्षित प्रभु ने लेकर आए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, सिस्टर पूजा मीरानी के लिए, माता पिता के लिए प्रभु, जिस प्रकार से वो निकले अपने यात्रा के लिए पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी सुरक्षा प्रभु, आपका अनुग्रह प्रभु और आपकी दिशा उनके जीवन में लागू होने के लिए प्रभु, सही सलामत अपने स्थान अपने घर तक पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर प्रकार का सहयोग, हर प्रकार की सहूलियत प्रभु इस यात्रा में उनको प्रदान हो, इसके लिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर आपसे मांगते हैं प्रभु अपना आशीष प्रभु आपके स्वर्गदूत पर खोलने के लिए, ताकि वो सही सलामत घर तक पहुंच जाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं।
इस समय हम प्रार्थना करते हैं बहन लक्ष्मी सिस्टर के घर के परिवार के लिए प्रभु, और घर की जो समस्या है और उसका जो संतुलन होना है, जिसका जो बातें होनी है, उस सभी बातों को प्रभु आपके हाथों में पहले डालते हैं प्रभु। जैसे वो लॉयर के पास जाते हैं, जो भी बातचीत होती है सभी बातों को प्रभु आपके हाथों में डालते हैं। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर बहन और उसके पति को, उनके बच्चों को प्रभु आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि दीजिए कि किस प्रकार से कौन से विषय में और कहां पर क्या बातें करनी है प्रभु, ताकि आपके लोग प्रभु उनको सही जो उनका जो भाग है वो उनको मिले पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु उस घर मालिक के लिए प्रभु, आपके आशीष प्रभु, आपकी बुद्धि प्रभु और आपकी समझ उत्पन्न देने के लिए प्रभु, और इसमें से जो समझौता हो प्रभु, वो समझौता आपके वचन के अनुसार आपके लोगों के लिए और दूसरों के लिए भी प्रभु सही हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके अंदर किसी भी प्रकार की दुष्टता या किसी भी प्रकार का भेदभाव या किसी भी प्रकार के और कोई अन्य बात न होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हम विश्वास करते हैं कि आप कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु, और आप अपने लोगों को जीवन में हमेशा कार्य करते रहते हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे घर कलीसिया के एक परिवार, हमारे कलीसिया के एक परिवार के लिए प्रभु जो पूरे तरह कोविड-19 से पीड़ित है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी सुरक्षा, आपकी चंगाई उस पूरे परिवार में होने के लिए, उसके बहन के जीवन में भी होने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। क्या हमारे पास ऐसा परमेश्वर है, हमारे पास ऐसा पिता है, हमारे पास ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारी बातों को सुनता है, हमारे विनती की ओर, हमारे वेदना की ओर ध्यान देता है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस परिवार को आपके सिंहासन के सामने ले आते हैं प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है कि आपके कोड़ों की माल खाने के द्वारा हमें चंगाई प्राप्त हो चुकी, उस चंगाई को प्रभु इस परिवार के जीवन में घोषित करते हैं प्रभु, इस बहन के जीवन में घोषित करते हैं प्रभु, और कलीसिया के हर एक व्यक्ति के जीवन में घोषित करते हैं जिसे जो बीमारी से त्रस्त है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ना सिर्फ शारीरिक बीमारी परंतु आत्मिक काम में प्रभु हर एक लोग चंगाई पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के भावनात्मक तरीके से वो हमेशा आपकी और प्रभु और लगा रहे प्रभु, आपके वचनों में आपके लोग हर एक दिन प्रभु वयस्क बनते जाए और आपके वचन को, आपके राज्य को खोलते रहे, इसके प्रार्थना करते पिता। इन सभी बातों को आपके हाथों में देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अफगानिस्तान के भाई और बहनों के लिए पिता, कि वो अपनी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी बुद्धि, आपकी समझ हर एक व्यक्ति में होने के लिए प्रभु, हर एक प्रावधानों के प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक सुख और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी बातों को आपके हाथों में डालते हैं प्रभु। हमें मेषपाल हमारे हर एक अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको आशीष कर आपकी बेदारी प्रभु, आपका नया जीवन प्रभु उनके जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके संवेदनशीलता प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष भौगोलिक आशीष मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आज हर एक परिवार जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ पिता, आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु, ये वचन आपके है प्रभु और ये जीवन है प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देता है। ये मेरे मुख से निकलने शब्द मेरे नहीं परंतु पिता ये आपके है, क्योंकि शब्द तो मारता है परंतु आत्मा जिलाता है, और हम आपके आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय, आगे का वचन प्रभु आपके हाथों में डालते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा अगुवाई कर और अभिषेकित कर प्रभु, आपकी महिमा, आपके गौरव के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम हमेशा विनती प्रार्थना करते रहते हैं और हमेशा हम गवाही भी सुनते हैं, परमेश्वर की अच्छाई और भलाई की बातें भी सुनते हैं। पिछले सप्ताह यही सप्ताह हमने एक बहन के लिए प्रार्थना की थी कि कोविड-19 से उत्तरस्त बीमार है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो बहन घर पर आई हुई है और एकांत में उसे रहने के लिए कहा गया है और वो पूरी तरह से चंगाई की और प्रगतिशील हो रहे, इसके लिए हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते कलीसिया का कि हर एक व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील होते हुए हर एक व्यक्ति अपने निजी जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में ये प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर यीशु मसीह देते हैं। इसके लिए हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आमीन हालेलुया। किसी को कोई गवाही देनी है तो सिर्फ 5 मिनट का समय देता हूँ, सिर्फ 5 मिनट। Praise the Lord. Praise the Lord. Hello. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। लॉर्ड ने ये मौका दिया मुझे गवाही देने के लिए।
लास्ट ट्यूसडे जैसा प्रार्थना खत्म हुआ तो मेरा बेटी का बहुत बुखार चढ़ गया था, उसको एकदम फीवरिश हो गया उसका, फिर 101 102 ऐसे जाता रहा। तो मिड नाइट में उसका जुलाब हो गया, फिर वॉमिटिंग हुआ, बच्चे का कंडीशन बहुत खराब हो गया था। हम लोग तो रात भर सोए नहीं थे उसको लेकर। फिर सुबह तो ऐसा हो गया, बच्ची खा नहीं रही थी, इतना मतलब उसको लूज मोशन और वॉमिटिंग दोनों भी हो रहा था, बच्चे का हालत बहुत खराब हो गया था। तो मैंने तुरंत चाइल्ड स्पेशलिस्ट पर लेके गई थी। तो मैं सोची उनको एडमिट ही करना पड़ेगी, तो बच्ची को खा भी नहीं रही थी, पी भी नहीं रही थी, तो मुझे बहुत टेंशन हो गया था और लूज मोशन में ब्लड भी आने लगा। तो मेरा इतना टेंशन हो गई थी, तो मैंने अर्जेंट में फोन किया और मैंने डॉक्टर के पास लेके गई इमरजेंसी में। तो डॉक्टर तुरंत मेरे को इमरजेंसी में ले लिया था, क्योंकि इतना पेशेंट थे। फिर भी लॉर्ड की मदद से प्रार्थना करके गई थी, तो अंदर उन्होंने ले लिया था। तो लेकर फिर सब टेस्ट करवाया, तो बोले कि उसका यूरिन चेक करो, अगर यूरिन ना पास होगी तो आप आके इधर लेके आ जाओ, फिर हम लोग कुछ भी करेंगे उसको। तो मैंने फिर घर लेके आ गई, फिर उसको मैंने वॉश किया, क्योंकि पानी जैसा जा रहा है तो यूरिन उसको आएगा क्या नहीं मुझे पता नहीं था। तो मैंने वॉश किया तो उसको यूरिन भी अच्छे से बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और ट्यूसडे और वेनेसडे भी उसको ऐसे ही हालत था उसका, बच्ची की बहुत खराब हो गई उसका, मतलब ना खाना ना पीना से बहुत बच्ची कमजोर हो गई। लेकिन लॉर्ड ने मदद किया, कल रात से वो ठीक है और अच्छी सी सुरक्षित है, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और अच्छी खा पी रही है और उसको सुरक्षित, आज मीटिंग भी उसे अटेंड किया, आज के दिन बहुत वो मतलब नॉर्मल हो गई, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि लॉर्ड की हाथ है कि मेरा बच्ची को सुरक्षित रखा है लॉर्ड ने, क्योंकि इतना उसका कमजोर होने के बाद भी लॉर्ड उसका दया दिखा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और इससे कि मेरा बेटा का आज बर्थडे है इनो का, तो 13 साल उसका खत्म हुआ है, लॉर्ड ने उसको सुरक्षित रखा है, इसके लिए भी प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। जो कृपा दया प्रभु ने मेरा फैमिली के ऊपर रखा है, इसके लिए भी वो धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। We request Brother Josh to pray for the birthday. आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम सब आपके उपस्थिति में है। हम आते हैं परमेश्वर ये विश्वास करते हुए कि आप हमारे हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारे जीवन के हर एक घटनाओं में, हर एक परिस्थिति में आप उपस्थित है। आपके जानकारी के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। पिता परमेश्वर, जैसे सुगंधी सिस्टर ने गवाही दिया, हेप्सिबा के जो शरीर में बुखार चढ़ा था, आपने उसको चंगाई दी है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। उनके उस कठिन परिस्थिति में, जैसे दाऊद कहता है, अंधकार के उन तराइयों में से भी यदि मैं होकर गुजरूं तो मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। पिता परमेश्वर, आपका वचन सत्य है, आप हम सबके साथ है और हेप्सिबा के भी साथ, उसके हर कमजोरी में आप साथ है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपने उसको चंगाई दिया, इसके लिए धन्यवाद। विश्वास से एक धर्मी व्यक्ति जीवित रहता है, आपका वचन कहता है। हम हेप्सिबा के लिए, पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते कि वे विश्वास से आगे बढ़ते जाए, प्रभु विश्वास में बढ़ते जाए। पिता परमेश्वर, खास करके इनोक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपने और एक साल उसको आगे बढ़ाया, जीवित रखा, ये दिन देखने के लिए दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। जब वो अपने माँ के गर्भ में था, उसके शरीर के हर एक अंगों को आपने रचाया। यस लॉर्ड, आपके स्वरूप में आपने इनोक को बनाया, इसके लिए धन्यवाद। पिता फादर गॉड, वी थैंक यू फॉर creating Enoch while he was in his mother's womb. Every part of his body, you have shaped it and you have created him in your own image. Father, we pray even as he reads your word, meditates, and even as he worships you, we pray, Father, that he will grow in wisdom, in knowledge of your word, and you will give him grace to practice your word in his daily life. The purpose why you have
sent him on this earth. Let that purpose be fulfilled, we pray, Father. Yes, Lord. We praise you for the gift of the Holy Spirit that you have given him, the talents that you have given him, Lord. We pray that he will use every gift and talent that you have blessed him with for your glory. Yes, Lord. In the midst of his friends, where he's staying, we pray that you will make him your testimony. Yes, Lord, that he will be your witness. We pray that you will anoint his tongue with the power of your Holy Spirit. Yes, Lord. Father, we commit Enoch into your hands. In the name of Father, Son, and Holy Spirit, we bless Enoch. Thank you, God, for hearing our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. आमेन। आइए हम संदेश में परमेश्वर के वचन को देखते हैं। पिछले सप्ताह जैसे हमने देखा था कि हम जो परमेश्वर यीशु मसीह में है, और जैसे हमने देखा था पिछले सप्ताह में कि इफिसियों की किताब से 6 अध्याय 10 से 18 वचन हमने देखे थे, वहां पे 6 अध्याय 10 और 11 वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत बनना है और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शक्तियों की क्षमता की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और पिछले सप्ताह जिसे हमने देखा था कि परमेश्वर के वचन के द्वारा कि वहां पर एक स्वर्ग नहीं है, परंतु हमने पहले देखा था जब हम योद्धा होते हैं तो योद्धा जो होता है तो शत्रुओं की रणनीति को जानता है, शत्रु कितना चालाक है, कहाँ पर है और किस प्रकार से किस हथियारों से सज्ज है, उस बात को हमने देखा था। जैसे पिछले सप्ताह हमने देखा कि शैतान जो है वो कहीं पर नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आकाश में है करके। जैसा हमने देखा था आत्मिक इफिसियों की किताब 6 अध्याय 12 वचन में देखा था कि क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के शासकों से है और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। और फिर हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:1 में जैसे कहा है कि आदि में परमेश्वर ने सिर्फ एक आकाश या एक स्वर्ग नहीं बनाया परंतु आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। जैसे अंग्रेजी में भी हमने देखा था गॉड क्रिएटेड हेवेंस एस, और उसके बारे में भी हमने देखा था। फिर हमने 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 2 से 4 वचन में देखे थे जहां पे वचन कहता है कि ऐसा मनुष्य इससे स्वर्गलोक में उठा लिया गया, इससे स्वर्गलोक में उठा लिया गया कि ऐसी बातें जो सुनी नहीं गई वो बातें वहां पर लिखी गई है। और परमेश्वर का वचन लूका के अध्याय में 23-43 में कहता है कि जो उतर गया है वही सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया है और सब कुछ परिपूर्ण करे। ये यीशु के बारे में कहा गया है कि यीशु मसीह सारे आकाश के ऊपर चढ़ गया। इसका मतलब वहां पर एक आकाश से ज्यादा आकाश है। और फिर हमने देखा पहला आकाश जिसे हम कहते हैं वो हमें अपनी शारीरिक आंखों से दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा या तो फिर यहाँ का बाहर का वातावरण जिसे हम शारीरिक आंखों से देख सकते हैं। फिर जैसे तीसरे स्वर्ग के बारे में हमने देखा है कि जहाँ पर परमेश्वर विराजमान है, परमेश्वर का सिंहासन है और इसके बीच में की जो जगह जिसे कहते हैं कि आकाश के अधिकार में है, हेवनली प्लेसेस जिसे कहा गया है। और इफिसियों 2:2 में हमने पढ़ा कि जिससे तुमने इस पहले के संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभ्य आज्ञा न मानने वाले के में कार्य करता है। तो ये बातों से हम जानते हैं कि वहां पर किस प्रकार का शैतान है या हमारा शत्रु है, वो कहाँ पर विराजमान है। और जैसे हम पिछले सप्ताह मैंने कहा था दानियल की किताब में से देखेंगे कि दानियल में जब प्रार्थना की शुरुआत की और शुरुआत इसलिए कि परमेश्वर ने उसे पता जो युद्ध होने वाले था उसके बारे में उसने विलाप किया। और जैसे उसने प्रार्थना की शुरुआत की, परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल 21 दिन तक प्रार्थना करते रहा। दानियल 21 दिन तक प्रार्थना करते रहा, परंतु परमेश्वर का वचन जो उसे कहता है कि उसका जवाब कब आया उसे, अगर हम पढ़ते हैं दानियल की किताब 10 अध्याय 12 और 13 वचन, यहाँ पर उसके दानियल के बारे में कहा गया है। लेकिन उसके पहले मैं आपको वचन दानियल की किताब 10वां अध्याय में कहा, ए दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए
और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। ये स्वर्गदूत उससे कहता है, परंतु आगे का वचन कहता है कि फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से एक है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस राजाओं के पास रहा। तो यहाँ पर इस वचन से हमें पता चलता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो आकाश जिसे कहते हैं, वहां पर किसी का राज्य है। फारस के राजा और उसके बारे में जो कहा गया, ये आत्मिकता में जहाँ पे आत्मिक सेनाएं हैं, दुष्टता की सेना है, उसके बारे में कहा गया। जब दानियल यहाँ पर धरती पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, स्वर्ग से उसकी प्रार्थना सुनी गई उसी दिन, और वहां से स्वर्गदूत जैसे वचन कहता है उसका जवाब लेके नीचे आता था, परंतु वो फारस राजा के साथ में युद्ध करता था। युद्ध इतना विकट हो गया कि उसको मिकाएल स्वर्गदूत उसकी सहायता के लिए आया। तो यहाँ पर हमें पता चलता है हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास जाती है, परंतु प्रार्थना आने के लिए समय लगता है, कभी तुरंत भी होता है। जैसे दानियल की प्रार्थना पहले दिन ही सुनी गई, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 21 दिन के तक वो प्रार्थना करते रहा। और दानियल की प्रार्थना से जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो शत्रु है, हमें मांस और लहू से युद्ध नहीं करना है, तो हमारा जो हथियार जो है वो प्रार्थना है, और प्रार्थना हमें निरंतर करनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें शत्रु मालूम है कि कहाँ पर है, तो हमें कैसे किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शत्रु की रणनीति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी रणनीति के अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए। और हमारी जो प्रार्थना है, परमेश्वर का वचन जैसे दानियल प्रार्थना करता है कि वो भेदने वाली प्रार्थना है, पेनिट्रेटिंग प्रेयर। प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना नहीं, परंतु वो भेद करने वाली, भेद कर जाने वाली, लगातार निरंतर करने वाली प्रार्थना है। और प्रार्थना किसके खिलाफ है? प्रधानों और उसके अधिकारियों के खिलाफ। दूसरा किसके खिलाफ है? उसकी शक्तियों के खिलाफ। तीसरा इस संसार के जो अंधकार के शासक है उसके खिलाफ। और फिर वचन कहता है उसकी दुष्टता के आत्मिक सेनाओं के खिलाफ जो आकाश में है। जब मैं इस वचन को देख रहा था तो ऐसे पता चलता है जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो मालिक होता है, उसके नीचे मैनेजर होता है, उसके नीचे अकाउंटेंट होते हैं, सेल्स वाले होते हैं, मार्केटिंग वाले होते हैं, यानी एक क्रम होता है। तो शैतान इस प्रकार से संगठित कैसा है, उसके इतनी बुद्धि कहां से आई? परंतु जैसा हमारा परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है और उस बुद्धिमान सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के साथ में ये एक स्वर्गदूतों में से था, तो वहां से उस कार्य प्रणाली की उसने नकल की है। और वो नकल उसने लोगों की तबाही के लिए वो करता है, परमेश्वर के लोगों को हिंसा के लिए, तकलीफ के लिए करता है। क्योंकि जैसे हम पुराने समय आज से 15-20 साल पे जब हम बस से गोवा की तरफ जाने के, तो हर एक जगह जैसे महाराष्ट्र से बाहर निकल, महाराष्ट्र में जैसे गांव में से निकलते हाईवे के पास से एक एक जगह पर वो ड्राइवर खड़ा रहता है, ड्राइवर गाड़ी रुकाता है, तो क्लीनर जाता है, नारियल लेता है, एक मंदिर है किसी जगह के सामने फोड़ता है, फिर वो आगे जाता है और 10-15 किलोमीटर उनकी एक एक जगह है जो मैंने देखी है। वहां जाके उन लोग या तो नारियल तोड़ते हैं, या तो फहार डालते हैं, या तो अगरबत्ती जलाते हैं। तभी मुझे पता नहीं चलने का क्यों है, मैं समझा कि उनके मंदिर है इसलिए किया होगा, नहीं। परंतु बाद में मुझे पता चला कि अगर इस तरह से उन लोगों को चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ दुर्घटना होती है। और बहुत से लोगों ने इसकी गवाही दी कि हाँ सचमुच उसने नहीं चढ़ा, उसने ऐसी गाड़ी लेके गई, आगे जाके उसका दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सेना जो आत्मिकता में है, आकाश में जो है हमें दिखाई नहीं देती है। हर एक गांव, हर एक नगर, हर एक राष्ट्र, हर एक प्रांत के ऊपर जैसे सरकार कार्य करती है उसी प्रकार से शैतान का भी राज्य है। और इस राज्य के थ्रू अपने को भेदना है। जब हम विश्वासी बन जाते हैं तो हम इसे भेद सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है जो हमारा संगी साथी है, जो हमारा योद्धा, जिसने हमारे विजय को पहले, हमारे युद्ध को पहले से ही विजय हासिल कर ली है। परंतु उसने कहा है कि खड़े रहना है, स्थिर रहना है। वो कहता है स्थिर रहो और जानो कि मैं यहोवा हूं। और इसलिए वो कहता है कि जब योद्धा हम होते हैं तो हमें आत्मिक हथियारों को पहन लेना है।
और वो कहता है कि ताकि हम बुरे समय का, बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ करके हम स्थिर रह सके। और जैसे इस वचन में हम इस चित्र में हम देखते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे परमेश्वर के आत्मिक हथियार के बारे में दिखाया गया है। ये हर एक हथियार हम देखते हैं, हमें पता है कि हमने इसे देखा है, हम जानते हैं, हमने इसका वचन भी बांटा है, हमने वचन को जानते हैं कि इफिसियों की किताब में 6 अध्याय में 10 से 18 वचन तक आत्मिक हथियारों के बारे में कहा गया है। परंतु अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब बातें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 13 अध्याय से 17 वचन में पढ़ता हूं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जैसे मैंने जो चित्र बताया, इसके अंदर हम जानते हैं कि जब योद्धा होता है तो अपने सत्य का कमर का पट्टा बांध लेता है, आत्मिकता की झिलम ले लेता है, पाँव में अपने जूते डाल देता है, अपनी ढाल ले लेता है, अपना टोप पहनता है और अपनी तलवार ले लेता है। परंतु इस चित्र का, इस जो हथियारों का, वो आत्मिकता में हमारे साथ में बहुत ही संबंध है। और हम जानते हैं कि इसकी तुलना जो आत्मिकता में हम किस प्रकार से सत्य का कमर पट्टा, जो हम सत्य के बारे में कहते हैं, बिना सत्य के हम कुछ नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह सत्य है, यीशु का वचन सत्य है। तो सबसे पहली बात जो सत्य के बारे में कहा गई है, कमर के पट्टे के बारे में कह गई है। और उस जमाने में जब योद्धा अपना कमर का पट्टा बांधने के, तो उसके ऊपर अपनी तलवार लटकाने के, अपनी पानी की थैली या तो फिर और कोई औजार, छोटी छुरी वगैरह उन लोग यहाँ बांध लेते हैं। आज के जमाने भी हम देखते हैं, अगर कोई इंस्पेक्टर होता है तो अपनी रिवॉल्वर वहां पे बांधता है, अपनी गोलियां वहां पर बांधता है और वहां पे आगे जब भी जरूरत है तो वहां से वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो उसका हथियार है। पर तो हमारा हथियार क्या है? सत्य है। अगर हम सत्य को जानते हैं तो हम सत्य के बारे में लोगों से कहेंगे। और हमारे पास ये पांचों जो कहा गया है, 6 जो हथियार है, इसमें से 5 जो हथियार है वो रक्षा के लिए दिए गए, और उसमें का एक जो है, जो तलवार जिसे कहते हैं, वो आपके आक्रमण के लिए दिया गया है। 5 आपको संभालने के लिए है, जो है कमर का पट्टा है, झिलम है, जूते है, ढाल है और टोप है। ये आपकी रक्षा के लिए। परंतु तलवार जो है आपको आक्रमण के लिए दी गई। ये 6 है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण साथ ही साथ मैं कहता हूं परमेश्वर ने और एक आपको तलवार दी है, और एक हथियार दिया हुआ है, और वो 18 वचन में कहता है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। तो हमारे पास 6 नहीं 7 हथियार है। 5 आपकी रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, और 2 जो है वो आपको आक्रमण करने के लिए है। और ये सब बातें, क्योंकि समय की वापस से कमी हो रही है, परंतु मैं ये कहना चाहूँ कि हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम विश्वास में हैं, और हम 1-2 साल से नहीं, परंतु एक नया विश्वासी भी, जैसे मैं था, मैं अपने आप के बारे में कह सकता हूँ, जब मैं आया था बहुत ही जलन, बहुत ही पागलपन या धुन थी क्या परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। हमारे पास वो समय पे लाइट भी नहीं होने की, लाइट की कमी थी। मैं 1980, 94, 95 की बात कर रहा हूँ, ये बोरोली में, कि एक फेस के ऊपर 7 बिल्डिंगें चलने की। तो हम क्या करने के, उस समय रात में चांदनी बहुत ज्यादा गिरने के, हम टाकी के ऊपर जाके बैठने के,
और बहुत से बार ऐसे हुआ, मैं अकेला ने, हमारे साथ में 2-4 मित्र और थे, सभी विश्वास में थे और इतनी धुन में पागल थे कि टाकी के ऊपर 4 माले का बिल्डिंग, उसके ऊपर टाकी के ऊपर जाके बैठने के। बहुत से बार तो ऐसा हुआ कि लोगों ने समझा कि चोर लोग बैठे हुए करके। तो वो धुन लगी थी और वो धुन में हम जानते कि परमेश्वर के, और जब हम धुन लगाते तो परमेश्वर सचमुच में हमारी बात इच्छाओं की पूर्ति करता है। और इन बातों को हमने उस समय से जाना है, परंतु जब इस वचनों को जब आ रहे, जैसे हम ये महीने से सालों से करते हैं कि हम तो जानते हैं कि हम विश्वासी है, परंतु हम विश्वासी के पास क्या अधिकार है, हम इस विश्वासी के पास अधिकार का सामना कब कर सकते हैं, हम सिर्फ इसका सामना या इसका इस्तेमाल कब करते हैं? रविवार के दिन करते हैं, घर कलीसिया में करते हैं, या तो फिर जब मुश्किल आती है तब करते हैं। बाकी के दिन अपने हथियारों की तरफ हम देखते भी नहीं है। ये हथियार जो है, बहुत से बार जैसे मेषपाल भी कहते हैं, ये हथियार जो है, ये हथियार की अभी है ना थोड़ी अदल बदल हुई है। अभी ये हथियार जाके हमारे पास ये हथियार आया है जिसके अंदर पूरी मिलावट है। वचन जो है वो सत्य है, ये उठाना बहुत ही तकलीफ होता है, ये बहुत ही तकलीफ का है, क्योंकि इसके अंदर हमको ढूंढना पड़ता है मरकुस कहाँ है और फिर नीति वचन कहाँ है, और फिर बाद में सबसे ढूंढने वाली बात, ये नहुम कहाँ है, हबक्कुक कहाँ है, ये तो दिखाई भी नहीं देते हैं। कभी कभी पता नहीं मेषपाल भी कहाँ से ढूंढ के लाते किताब को, हमको ढूंढना पड़ता है, यहाँ है कि कहीं और चला गया है। परंतु इसको मालूम है सब, व्हाट्सएप कहाँ पे है, इंस्टाग्राम कहाँ पे है, फेसबुक में कैसे जाना है, कॉपी कैसे करना है, कट पेस्ट कैसे करना है। ये आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी लागू है, सबके लिए। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जो जितना बोता है उतना वो काटता है, जितना वो बोएगा उतना काटेगा। और जो कुछ उसके मन में होता है, उसके हृदय में होता है, जैसे वचन कहता है कि आउट ऑफ द अबंडेंस द माउथ स्पीक। जब बातें करने बैठे हो या वचन करने बैठे हो तो आपको देखने की जरूरत नहीं है कि आप क्या बोलते हो क्या नहीं, क्योंकि आपके अंदर से, आपके मन में जो भरा है वही निकलेगा। अगर वचन भरा है तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा कि कौन सा वचन कहाँ के ना। हमारे नहीं, मुझे तो बात करने तक नहीं आती, मैं तो सबसे कहता हूँ। कल जोश का बर्थडे था, उसके दोस्त लोग आए थे 2 जन, उसको बुला रखा, 2 जन आए थे, उनसे भी वह बात कर रहे थे, बोला उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर है, इसके लिए बहुत सारी बातें संभव हुई हमारे जीवन के, हम उसकी आशीषों को, उसकी सफलता को और उसकी उन्नति को हमारे जीवन में देखते, हम उसके गवाह है। इस गवाह का प्रकाश हर तरफ फैलना चाहिए कि हम नम्रता से चले, न्याय से काम करें, भलाई के साथ प्रीति रखें, क्योंकि वचन कहता है, दाऊद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो कहता है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है और उसके कान की उसकी दुआई की ओर लगे रहते हैं। बहुत ही अच्छा वचन। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने लड़कपन से बुढ़ापे तक देखते आया हूं, परंतु ना तो कभी को धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगता हुआ देखा। हाँ, कमी हो सकती है जो हमारे शब्दों में है, घटी हो सकती है हमारे शब्दों में, मैं परमेश्वर की नजरों में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज की रोटी हमें दे। कल के बंगले के बारे में, कल की नौकरी के बारे में नहीं कहा है, आज की रोटी हमें दे। आज का जो है वो आज के लिए, कल के लिए नहीं कहा है। पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जो है युगानुयुग एक सा है, उसके वचन बदलते नहीं है। मैं जब नीति वचन पढ़ता हूं तो आज के जीवन में हमारे पास जो भी सवाल है वो सभी सवालों का जवाब आपको नीति वचन में मिलेगा। हम काम पे सुबह के समय क्यों जाना है, शाम को क्यों वापस आना है, रात को क्यों सोना है, घर में मेरी स्त्री कैसी होनी चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, वो दाखलता के समान क्यों है, ये सभी बातें वहां पर लिखी हुई है। और ये सभी बातें हमारे जीवन में लागू होती है जब इस आत्मिक हथियारों का अगर है इसका हम अनुसरण करते हैं तो हम सचमुच में परमेश्वर के
वचन के अनुसार, उसकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं। ये जैसे मैंने कहा कि सत्य के बारे में है, कमर का कट्टा है, धार्मिकता की झिलम है। फिर हमने देखा कि पाँव में सुसमाचार के जूते। जब हम सत्य से चलते हैं, जब हमारे हृदय में जो होता है वही हमारे मुख से निकलता है, परमेश्वर के वचन निकलते हैं। हमारा मकसद एकदम दृष्टिकोण एक होता है, तो हम लोग परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर की जो बुलावट उससे हम जानते हैं, और फिर उस सुसमाचार के जूते परमेश्वर का वचन, सबसे बड़ी बुलावट जो मत्ती 28 में उसने की है कि जाओ और सारे संसार को सुसमाचार सुनाओ। अगर आप संतुष्ट हो, अगर आपने यीशु में आनंद प्राप्त किया है, तभी आप जा सकेंगे। अन्यथा वो शब्द सिर्फ शब्द हो गए। जो वचन कहता है शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है, और जो शब्द आत्मा के द्वारा किए जाते हैं वो कभी भी नहीं मरते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे शब्द जिस बात के लिए भेजे गए उस कार्य को पूरा करेंगे और पूरा करके ही लौटेंगे। और विश्वास के बारे में, विश्वास की ढाल के बारे में कहा गया है। अगर हम विश्वास की तुलना करते हैं तो विश्वास जो है, मैं कहता हूं कि विश्वास जो है वो परमेश्वर में विश्वास है और परमेश्वर के वचनों में विश्वास है। और ये एक ऐसा हथियार है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। जब हम अदन के बगीचे में देखते हैं तो वहां को, हवा को परमेश्वर ने हथियार दिया था। वो एक ही हथियार था उसके पास, परमेश्वर का वचन। उसके पहले उसे किसी आत्मिक हथियारों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उसे उसकी समानता में बनाया, उसके स्वरूप में बनाया। और परमेश्वर उनसे बातें करने का, दिन के ठंडे के समय परमेश्वर आके उनसे बातें करने का। और जब शैतान सर का रूप धारण करके आया तो उसने क्या कहा, क्या सच है परमेश्वर ने कहा है? और क्या डाला उसके अंदर, हवा के दिमाग में, मन में संदेह, डाउट। जो परमेश्वर का वचन उसने दिया था वही उसने खो दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास से नहीं है वो पाप है, जो संदेह करके खाता है वो वहां पे दंड के योग्य ठहर चुका है। अगर हम, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम जिस दोस्तों के साथ में या जिनके साथ में हम उठे बैठे हैं, अगर वो अविश्वासी लोग हैं तो हमें उनकी बातों की तरह बहुत ही ध्यान से सुनना है और करना है। क्योंकि बहुत से बार ऐसा हो जाता है जो विश्वासी अविश्वासी के साथ इतना उठा बैठा है कि उनकी बोली, उनका चलना मनना जैसे उसका रूप धारण कर लेता है। कोई बोली में उन लोग बोलने लग जाते हैं, और जब वो अविश्वास के बीच हमारे अंदर बोलते हैं विश्वासी में, वो वहां पे पनपने लगते हैं। और जब कठिन परेशानी का सामना करना पड़ता है तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि अविश्वास के पेड़ इतने बड़े हो चुके होते हैं कि विश्वास वहां से लुप्त हो जाता है। तो इसके लिए विश्वास की दाल सिर्फ विश्वास के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। फिर पांचों कहते हैं कि उद्धार के टोप के बारे में, तो यहाँ पर सब चालू होती है, प्लानिंग, योजना सब रणनीति। दोस्त ने मुझे ऐसा कहा था, ठीक है अगले बार मिलने से मैं बात करूंगा, अभी बोला ना रणनीतियां चालू है। यहाँ से शुरुआत होती है, चलते रहता है, यहाँ से निकलता है। क्योंकि हम जैसे सोचते हैं, जैसे मन में विचार करते हैं, वैसा मनुष्य आपके परमेश्वर का वचन कहता है। जिस बात के और हम ज्यादा मनन करेंगे, जिस बातों के बारे में, वही हमारे मन में घर कर जाती है। इसके 2 कोरिन्थियों 10:3-5 में कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर एक कल्पनाओं को, हर एक उचित बात को जो परमेश्वर के पहचान और विरोध में उठती है उसका खंडन करते हैं, उसका खंडन करते हैं। इस सोचों को, कल्पनाओं को हमें निकालना है, धो देना, हटा देना है। हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारिता में हम कर देते हैं। और जो दिखाई नहीं देता है उसे हम विश्वास में कहते हैं हाँ है। जैसे अब्राहम के बारे में कहा गया, और विश्वास वाले नगर की और आशा से देखते रहा, जिसका वाला और नींव डालने वाला परमेश्वर
है। और ये जो पांचों है उसके साथ में आत्मा की तलवार, तलवार जो होती है वो सीमित होती है, परंतु परमेश्वर का वचन तो 18 वचन में कहा गया हुआ है, परमेश्वर का वचन जिसके बारे में प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर का वचन सीमित नहीं है। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, और हम किसी मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं। 1 कोरिन्थियों 14:2 कहता है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और ये प्रार्थना, ये भेद की बातें, ये किसी सीमा में सीमित नहीं रह सकती। इस सीमा के बाहर है, प्रांत के बाहर इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके लिए वो वचन कहता है कि हर समय हर व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे हमें बोलना आता है या नहीं आता है। मैं कहता हूं सभी लोगों को बोलना आता है। जो व्यक्ति कहता है मुझे बोलना नहीं आता, उसको झगड़ा करने के लिए खड़ा करो, सब शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे पास शब्द है, लेकिन परंतु हम मनुष्य को देखते हैं जो हमारे सामने है, वो क्या सोचेगा, मैं क्या बोला, मैं कैसे बोला, वो मेरी खिल्ली उड़ाएगा, मुझे टट्टों में उड़ाएगा। जब यीशु मसीह को टट्टों में उठाया गया उसने कोई परवाह नहीं की, तो हम तो उसके संतान हैं, हम तो योग्य भी नहीं थे परंतु परमेश्वर ने हमें योग्य किया है। आज स्वर्गीय सिंहासन पर हम विराजमान यीशु मसीह के साथ में संग के वारिस है, उसके मीरास के भागी है। अगर आपका पिता आपको कोई जायदाद छूटता है, आपको बेंगलोर जाना है, तो आप क्या 1 महीने के बाद जाएंगे? 1 2 3 काम धंधा सब छोड़ के पहला प्रस्थान उधर, क्योंकि हम मीरास को पाना चाहते हैं। तो ये स्वर्गीय मीरास हमें जो दी गई है हर एक दिन के लिए उपलब्ध है, हर एक दिन के लिए उपलब्ध है। और हर एक दिन, क्योंकि ये जो महामारी का समय चल रहा है, हम सभी लोग पूरी कलीसिया नहीं परंतु पूरा संसार प्रार्थना करके इस महामारी को खत्म होने के लिए, हम भी मानते परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर ही का, क्योंकि महामारी को लाने वाला, करने वाला, नियंत्रण करने वाला परमेश्वर यीशु है। परंतु हम कलीसिया होने के नाते व्यक्तिगत रूप से हमें हमारे जीवन में ये देखना कि महामारी आए तो परमेश्वर हमें इस बात के द्वारा क्या सिखाना चाहता है, क्या प्रशिक्षण देना चाहता है, हम इससे क्या सबक ले, ये जरूरी है। जब मैं कोई भी बीमारी से गुजरता हूँ या घर में कुछ भी तकलीफ होती है तो मैं यही पूछता हूँ ये क्यों हुआ, तब मुझे पता चलता है यहाँ मेरी आउटलाइन हो गई थी, थोड़ा बाहर चला गया था, अभी रास्ते पे आना। जैसा हम बच्चों को सिखाते हैं ऐसा करेगा तो ऐसा करेगा, तो हमको चीजें देते नहीं है लेकिन बोलते नहीं है बच्चों को। उसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता है, तो कुछ बातें हमसे कहता नहीं, हमको हम खुद अपने रास्ते में निकल जाते हैं, थोड़े भटक जाते हैं, क्या करते क्यों गया करके, फिर हम वापस अपने लाइन में आते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम तो योद्धा है, अपने स्थान को, अपने स्तर को जाने। हर एक व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर ने उसे चुना है, उसके जीवन के ऊपर एक बुलावट है, उस बुलावट को पहला जानिए। जैसे जो हमेशा कहते हैं, उन्होंने कहा थी कि आपके जीवन के ऊपर बुलावट क्या है वो आपको जानना जरूरी है, आपको आपके आत्मा में ये जानना बहुत ही जरूरी है, और उस बुलावट के अनुसरण में आपको चलना है, और परमेश्वर उसकी पुष्टि करता है। पवित्र आत्मा आपके आत्मा के साथ में उसकी गवाही देता है, और जब आप उस बुलावट में चलते हैं तो तकलीफें आएगी। सबसे बड़ी तकलीफ है समय की, बाकी चीजों में आप व्यस्त हो जाएंगे और आपके बुलावट के प्रति आप गाफिल हो जाएंगे। परंतु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उसने जो हमें पवित्र आत्मा दिया है वो हमें बोध दिलाता, हमें स्मरण दिलाता है
कि हम अकेले नहीं है। हम जब गिरते हैं तो वहां पे गिरे नहीं रहते, त्यागे नहीं जाते हैं, पर तो उठाए जाते हैं हर एक दिन, हर एक समय। और परमेश्वर यहोवा ही है जो हमें हमेशा आशीष देता है और उसके साथ में वो किसी प्रकार का दुख नहीं जोड़ता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमें इस अंतिम दिनों में, हर एक क्षण में, हर एक दिन, ना सिर्फ हमारे परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए, परंतु हर एक के लिए विनती करनी चाहिए। और अंत में कहते हुए मैं समाप्त करना चाहूंगा इफिसियों की किताब 6 अध्याय 8 वचन से लिखे, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूँ क्या भले हमारा ये महीने का समय खत्म हुआ है, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में, महीने, परंतु हर एक व्यक्ति उत्साहित होकर परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ इस कलीसिया में, परंतु जहां पर परमेश्वर ने उसे रखा है वहां पर वो अपनी बुलावट के प्रति जागरूक होकर वहां पर परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ शब्दों से, परंतु अपने आचरण के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करेगा। आमीन। हालेलुया। Brother Joseph, if you could close in prayer. ओके, आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा जो भी हम सबने सुना, केवल हम सुनने वाले न रहे, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बने। हम एक आत्मिक युद्ध में है, इस बात को स्मरण करते हुए हम हर समय वचन और प्रार्थना और हर प्रकार का हथियार को लेकर सत्य में रहना, सत्य बोलना, कोई भी प्रकार का झूठ हमारे जीवन में हम स्थान न दे और सुसमाचार का बोझ हम सबके ऊपर हमेशा रहे। यस लॉर्ड, जैसा पौलुस कहता है कि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि मैं सुसमाचार को सुनाऊं, यदि मैं नहीं सुनाऊं तो मुझ पर हाय। पिता परमेश्वर, हम सब उद्धार पाए हैं, उसका सबूत कि हम नाश होने वालों के प्रति हमारा बोझ, जैसे हम एक दिन नाश के उस मार्ग में थे जहां से आपने हमें छुड़ाया और हमारा उद्धार किया, यदि सचमुच हमने उद्धार को छका है तो हम दूसरों का भी उद्धार के लिए हमारे जीवन में एक बोझ हो। पिता परमेश्वर, क्षमा कर, हम में से कई लोग उस पहला प्रेम को, आपके प्रति जो प्रेम था, वो पहला प्रेम को हमने खोया है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रार्थना, वचन, सुसमाचार कहने में, स्वभाव में कमी है। परमेश्वर, इन दिनों में, अंतिम दिनों में हम सबको छू, ऐसा हम प्रार्थना करते। परमेश्वर, दया, आपके दया, प्रेम और क्षमा के अनुसार आप हम सबके जीवन में कार्य कर। परमेश्वर, हम सबके जीवन परिवर्तन कर और भी प्रभु। यस लॉर्ड, आपके पुत्र यीशु मसीह के आने के लिए हम सबको तैयार कर। परमेश्वर, यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, आपके दास को आपने अभिषेक किया आपका वचन बांटने के लिए, और बच्चे जो वचन बोले वे वचन को हमेशा याद रखे। हमने जो आराधना किया, हमारा जीवन भी आने वाले समय, आने वाले दिन, हर समय हमारा जीवन भी एक आराधना बने प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं।
वचन सुनने वाले सभी को आप आशीष कर परमेश्वर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Thank you, Joseph brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Enoch, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Henu. Happy birthday. Happy birthday. God bless you. Bless you, God. Happy birthday. Thank you, everyone. Thank you for the word, brother. Thank you, Salah. Happy birthday, Enoch. Thank you for attending. Yes. Nice to see you. Happy birthday.